آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ مبارک اے محمد مصطفیٰ کے عاشقوں مبارک ہو مبارک ہو مبارک
ولادت مرحبا، داتا کی ولادت مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، ہے جشن ولادت مرحبا، جذبے سے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، یا رسول خدا مرحبا مرحبا، جان تم پر فدا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، آئے شمس و ضحیٰ مرحبا مرحبا، شاہ بدر و دوجا مرحبا مرحبا، آئے نور الہدیٰ مرحبا مرحبا، شاہ خیر الورا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا، آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا، میرے حاجت روا مرحبا مرحبا، رہبر و رہنما مرحبا مرحبا، شاہ ہر تو سرا مرحبا مرحبا، رحمت
علیم و خبیر سرور انبیاء مرحبا مرحبا آمینہ کے یہاں شاہ کون و مکان آئے خل پڑ گیا مرحبا مرحبا سر پہ تاج شفاعت ہے چین کے وہ آ گئے مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی چار سو شور تھا مرحبا مرحبا آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی چار سو شور تھا مرحبا مرحبا چار سو شور تھا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہنگی فضا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی مہکی فضا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی مہکی فضا گناتی صدا مرحبا مرحبا گناتی صبا مرحبا پھول کھلنے لگے رات کہنے لگے پھول کھلنے لگے رات کہنے لگے ہر شجر پھول اٹھا مرحبا مرحبا ہر شجر پھول اٹھا مرحبا مرحبا ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا 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 کیف سا چھا گیا مرحبا مرحبا کیف سا چھا گیا مرحبا مرحبا چار سو چاندنی ہر طرف روشنی چار سو چاندنی ہر طرف روشنی جا بجا نور
مہینے کی آہا کیا بات اس مہینے چومو شادی کے مانگے نور آیا چومو شادی کے مانگے نور آیا آہا کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید کی وہ چمکا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیب صبح شب ولادت واہ کیا بات اس مہینے نور کی نور ہر طرف چھایا واہ کیا بات اس مہینے کی 12ویں کا نور کا دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی امیر علیہ سنت نے جو اس پرفتن دور میں اس فتنے والے دور میں جو ہمیں امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور صحابہ اکرام اولیاء اکرام سے جو محبت دی ہے امیر اہل سنت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امیر اہل سنت فرماتے علماء اہل سنت میرے سر کے تاج ہے. بہت محبت ہو رہی ہے مرشید کے ساتھ اور مرشید کے شہزادوں سے محبت ہے. ایسے امیر اہل سنت بہت اچھا ہے، وہ بچوں سے پیار بھی کرتا ہے. امیر علیہ سنت کو اس 44 سال دعوت اسلامی کے مکمل ہونے پہ ہم کو مبارکباد دیتے ہیں اور امیر علیہ سنت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسی تحریک ہمیں دعوت اسلامی بنا کے دی. اس پرفتن دور میں ہمارے لیے ہمارے نسلوں کے لیے یہ بڑا ایک تحفہ ہے. آج کل الحمدللہ مدنی مذاکر میں پیر مرشد سے یہ نگران شورا نے ایک تنگ دستی کے متعلق جو بچہ تھا کہ جو ہے ہر کوئی پریشان ہے اس دور میں تو کیا کریں. تو پیر مرشد نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہے الحمدللہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ نے یہ بھی مثال دی کہ مشکلات تو انبیاء کرام پر بھی آئی تھی لیکن انہوں نے صبر بھی کیا. لیکن سب سے مشکلات میں ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آئی تھی لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ویسے تو بہت کچھ علم حاصل ہوتا ہے مدنی مذاکروں میں. وراثت کے مسائل کے بارے میں بتایا اور اللہ تعالیٰ کے کرم ہے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت ہوتی رہتی ہے اور سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. غربت کے بارے میں بتایا تھا اور صبر کے بارے میں بتایا تھا. FGRF جس طرح مدد کر رہی ہے تو یہ بات اس میں ہمیں خود کو بھی اس میں حصہ ملانا چاہیے. جس طرح FGRF مدد کر رہی ہے بنیر میں ہو گیا یا پنجاب میں جس طرح حالات ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود آگے بڑھیں اور پیر صاحب کے اس جو فرمان پہ لبیک کہتے ہوئے جتنی بھی دکھیاری امت ہے اس کا ساتھ ہے. یہ بات پیر صاحب کی میرے دل میں کافی اور میرے بھی اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی مدد کروں یا دوسروں کو دعوت دوں کہ وہ بھی اس میں مدد کریں. الحمدللہ یہاں کا نظام بہترین ہے. کھانا پینا اور یہاں کی صفائی کا نظام سب سے بڑھتا ہے. سیدی امیر علیہ سنت کی باتیں سن کے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا یار. یہاں پہ لائٹنگ دیکھ کے یہاں پہ جھنڈیاں دیکھ کے نظام دیکھ کے نعرے دیکھ کے حضور کا میلاد کس طرح مناتے ہیں یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ دھوم دھام سے منانا ہے گج وج کے جوش جذبے کے ساتھ انشاءاللہ حضور کا میلاد منانا ہے. کراچی میں بڑا مسجد 12 ربیع الاول پہ سجایا ہے. اس کو دیکھ کے من کر رہا ہے کہ میں بھی اپنے گھر میں ایسا ہی کروں. گھر میں سجائیں لائٹیں لگائیں میلاد کریں گے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں. دین کی کام بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ربیع الاول کی بہاریں بھی نصیب ہو رہی ہے. مدنی مذاکروں میں شرکت ہو رہی ہے ہفتہ وار اجتماعوں میں بھی. انشاءاللہ عز و جل میں نے یہ نیت کی ہے کہ اپنے علاقے میں ایک جلوس نکالوں گا انشاءاللہ. میں نے بھی آج نیت کی کہ انشاءاللہ روزانہ 1500 مرتبہ درود پاک کا نذران پیش کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नत अल-इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की शहादत पाए, एतिकाफ की नीयत जरूर फरमाएं। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। दिली में नीयत कर लीजिए मैंने सुन्नत एतिकाफ की नीयत की, आप मुअतकिफ हो गए। जब तक मस्जिद में रहेंगे एतिकाफ का सवाब मिलेगा, जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो नफल एतिकाफ खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम किया पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं कि जबकि एतिकाफ की नीयत की हो। नीयत नहीं की तो मस्जिद में खा नहीं सकते, इफ्तार भी नहीं कर सकते। तो अब कर दीजिए नीयत, इफ्तार के टाइम आ गया या खाने का मौका आया और याद आया आपको, तो खाना पीना तो जायज़ हो जाएगा, लेकिन सवाब एतिकाफ की नीयत से मिलेगा नहीं। एतिकाफ की नीयत जब भी करनी है तो सवाब के लिए करनी है, अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब की नीयत करेंगे तो सवाब भी मिलेगा। तो बेहतर ही है कि अब आते वक्त भूल गए थे तो अब खाने के टाइम पर या इफ्तार के टाइम पर आई याद, तो नीयत करें और सवाब के लिए और कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें। अब बेशक आप इफ्तार वगैरह कर लें। 1447 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की आज छठी शब है। इस मुनासबत से ज़ियाए दुरूद व सलाम पेज नंबर 3 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 6, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे अर्ज की कि रब तआला फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक सलाम भेजे, मैं उस पर 10 सलाम भेजूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मजीद अच्छी अच्छी नीयतें बढ़ा लीजिए, हो सके तो इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद फैल कर दूसरे को तंग कर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो के साथ दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, मजबूरी ना हुई तो सलातु सलाम तक शरीक रहूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर साईं भाइयों से सलाम व मुसाफहा, ये हाथ मिलाना, और मौके की मुनासबत से उन पर इनफरादी कोशिश करूंगा, नेकी की दावत दूंगा, काफिले में सफर की दावत दूंगा वगैरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा शुरू हो चुका। अब सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब, यानी दुरुस्त दे पाऊँ, ये जरूरी नहीं, बंद पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए व शाये करता, अपने कहे पर बिला वजह कायम रहता नहीं, भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि इख्तिलाफ जितना भी बढ़ जाए, 2 हदें कभी ना पार करें, किसी के रिस्क पर वार ना करें, किसी की इज्जत को निशाना ना बनाएं। आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? दुरुस्त है कि इन 2 बातों पर भी वार ना करें, और भी बहुत कुछ है जिन पर वार ना करें। अब इख्तिलाफ, जिस तरह का इख्तिलाफ, बाज़ इख्तिलाफ दीन ईमान का होता है, अज़मत सहाबा व अहले बैत का होता है, तो इस तरह के जैसा इख्तिलाफ तो वैसा रद्द अमल होता है। इसमें जनरली मतलब जो दुनियावी तौर पर जो इख्तिलाफ राय हो जाता है, ये यहाँ हम इसको मतलब लेंगे, तो ये दुनियावी तौर पर इख्तिलाफ राय हो गया, दोस्तों में इख्तिलाफ राय हो जाता है, दोस्ती भी रहती है और थोड़ा कह सुनकर बोल बोलेंगे, तो जैसा इख्तिलाफ, तो ताहम बरल किसी भी मुसलमान की इज्जत पर हमला, इख्तिलाफ हो या मुवाफकत हो, नहीं करना होता। इस तरह किसी के रिस्क पर वार न करें,
اب اس کے معنی کیا ہے یہ لکھنے والا جانے. وہ جو کالا میلا کرتے ہیں, ہاں گاہک توڑتے ہیں, اختلاف کی وجہ سے بھی گاہک توڑتے ہوں گے, اور رزق کے تعلق سے اور ہرس میں بھی توڑتے ہیں کہ اس سے نہ لے مجھ سے لے مال. شروع میں عمدہ اور سستا اس کو دیں گے تاکہ گاہک جو ہے اس سے ٹوٹ کر ادھر پھنس جائے, پھر آگے چل گئے چارہ دکھا کر بکرے کو ذبح کر دیتے. تو یہ بھی بہت بری حرکت ہے. کسی کی بے عزتی کرنا یہ بھی بری حرکت ہے, اور کسی کی روزی کے لیے معاذ اللہ رکاوٹ کھڑی کرنا یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت مطلب یعنی کہ بہت غلط اقدام ہے. روزی جتنی اللہ نے مقدر کی آپ کو اتنی ہی ملے گی. تو ہرس کی وجہ سے بھی لوگ ایک دوسرے کے گاہک توڑتے ہیں اور گاہک خراب کرتے ہیں, کسی کے مال کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اب جیسے کوئی چیز بیچتا ہے کھانے کی, کوئی پروڈکٹ ہے اس کا, تو اس کو فیل کرنے کے لیے بولیں گے اس میں تو سور کی چربی ہے. اب مرا بیچارہ, اس نے غریب نے زندگی میں کبھی سور کی چربی دیکھی ہی نہیں ہے, اب اس کی پروڈکٹ میں سور کی چربی وہ ڈال دی. اب یہ آخرت میں کیا کرے گا, جواب کیسے دے گا اس کا؟ جس نے ایسی حرکتیں کرتے ہیں آج کل لوگ بھی بیچارے باتوں میں آ جاتے ہیں اور بس وہ اس کو حرام سمجھ لیں گے, تو دوسروں کو بتاتے پھریں گے پتہ چلا اس میں تو یوں ہے. کس نے وہ سوشل میڈیا میں نے دیکھا تھا, سوشل میڈیا پر ایمان لائیں گے یار, کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں. سوشل میڈیا تو جس کو اجاڑنا ہو نا, اس کا عادی بنا دینا چاہیے. نہیں دین کا نہ دنیا کا بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. تو سوشل میڈیا سے درست فائدہ, جائز فائدہ استعمال کرنا, یہ تو کرنے والے تو میری مراد یہ ہیں بھی, مستثنیات تو سب میں ہوتے ہیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ آدمی اتنا مطلب اس میں یہ نشے کی طرح ہے کہ بس آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا, اتنا اس میں گم ہو جائے گا. اور پھر اتنے گناہ بھرے اور اتنے عجیب و غریب لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اب جیسے جشن میلاد ہے نا, کتنا پاکیزہ ہے, تو اس میں بھی بعض منانے کا دعویٰ کرنے والے بھی ایسے مسخرہ پن اس کی حرکتیں کرتے ہیں کہ یار ہم لوگ کیوں مت یار بدنام کرتے ہو یار, ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسے سین پاٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ مطلب بس وہی ہے کہ جہاں کوٹھی ہوتی ہے بنگلہ ہوتا ہے, واش روم بھی ہوتا ہے, ڈسٹ بن بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی مطلب طرح کے اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑی نقاب کشائیاں ہو رہی ہیں. ورنہ یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھی, لیکن وہ ایک محلے میں گلی میں خلاص. اب یہ سوشل میڈیا پوری دنیا میں دھوم مچتی ہے, مائنس ہو یا پلس ہو. تو بہرحال یہ کہ اس طرح سوشل میڈیا کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا چاہیے. ہمیں سنی عالم ہو, وہ بھی عالم دین ہو اور خوف خدا والا ہو, تو اس کی بات ماننی چاہیے. ہر ایک کی بات میں آنکھیں بند کر کے ہم چل پڑتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کہاں نکل جاتے ہیں. اللہ پاک سب کو توفیق دے. بہرحال یہ کہ اختلاف کی صورتیں بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 34 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے والے شخص کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سرزنش مانے وہ ڈانٹ کے طور پہ پکا منافق فرمایا, حتیٰ کہ وہ ان سے باز آ جائے ایسی حرکتوں سے. وہ کیا ہے, جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے, بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, اور اگر اختلاف ہو تو آپ پہ سے باہر نہ ہو جائے. جب پکا منافق, یہ عربی منافق میں مفہومی ترجمہ کیا ہے, وہ یوں ہیں کہ من کان فیہ, ان میں سے کوئی جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں, کانا منافقا خالصا, اور یہ ہے کہ معاہدہ کرے تو اس میں غدر کرے, اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب جھگڑا ہو تو اس وقت گالی دے.
अच्छा, अब मुख्तलिफ रिवायात भी होती हैं बुखारी शरीफ की। 34 नंबर तो यही 34 नंबर, जी जी, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। अब मेरे पास तर्जमा आया, मैंने पढ़ दिया, पक्का मुनाफिक पर मैं चौंका था क्या। वो तो काना खालिस मुनाफिक। अच्छा, ये खालिस मुनाफिक से मुराद भी वो नहीं कि ये इस्लाम से निकल गया, वो इस बतौर सरजनिश, ये मफहूम है बतौर सरजनिश, मुनाफिक अमली। तो ये भी मतलब यानी कि ये वो निफाक फिल एतिकाद, ये खतरनाक होता है, ये निफाक फिल अमल है, अमल में निफाक इसका आया, तो ये मतलब गुनाहगार है, मतलब ऐसा करने वाला जो ऐसा करे। और वो जो मुनाफिक होता है ना, जो दिल में जबान पे ईमान का दावा करे और दिल में कुफ्र रखे, ये मुनाफिक खतरनाक है, ये हमेशा के लिए जहन्नम में, जहन्नम के भी आखिरी निचले तबके में होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, तो ये हदीस पाक जो है इसमें तो तर्जमे में कुछ मसला है, तो आप हाँ जो भी है बयान कर दीजिए। उसमें अल्फाज ये हैं कि जिसमें ये 4 खसलतें हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिसमें इन चारों में से कोई एक है तो उसमें मुनाफिकत की एक निशानी है, हत्ता कि उसे छोड़ दे। वो 4 निशानियां फिर ये बयान की कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे, जब गुफ्तगू करे तो झूठ बोले, और जब इदा आहदा गदरा, मुआहदा हो उसका किसी से तो उसमें गदर से काम ले, धोखा दही के साथ काम ले। व इदा खासमा फजरा, और जब झगड़ा हो तो उस वक्त गाली बके, आप पे से बाहर हो जाए, ये लिखा तो गाली दे फजरा। गालियां बकेगा तो ये ना कि जब घूमेगी इसकी तो आप पे से बाहर हुआ, ये मुरादी माना किसी ने अपने हिसाब से लिखे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे आका की आमद है, मेरे दाता की आमद है, मेरे मक्की की आमद है, मेरे मदनी की आमद है। झूमो आमदे सरकार, आमदे सरकार, झूमो। मेरे प्यारे बाबा जान, आपको मेरी तरफ से 1500वां जश्न विलादत मुबारक हो। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। आ गया मिलाद का मौसम सुहाना है, 1500वां में मिलाद मनाना है। खत्मे रुसूल मक्की मदानी होने न तुम सा कोई नहीं। वालो आयो वा, रूर खली आयो वा, सच्चे आलम योड सो हेरो नूर शायो वा। और भी कनूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। आका की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा, सोने की आमद, मरहबा, माशाअल्लाह, क्या बात है, बच्चा आशिक रसूल, क्या बात है माशाअल्लाह। प्यारी प्यारी अदाएं प्यारे प्यारे बच्चों की 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मिठा मिठा शहद से मिठा मदीना दिखाए, आमीन। बिजाए खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। আমরা যে প্রিয় আকা এর 1500তম জশনে মিলাদ উদযাপন করছি, তিনি কি কখনো প্রাণী পোষেন? যদি পোষে থাকেন তবে কোন কোন প্রাণী? এছাড়া আমির আহলে সুন্নত প্রাণী পালনের বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিন। যে প্রাণী পালনের কোনো বিষয়ে
সতর্ক থাকতে হবে। बांग्ला जुबान में किए गए सवाल का उर्दू खुलासा। हम जिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत मना रहे हैं, क्या उन्होंने कभी जानवर पाले हैं? अगर पाले हैं तो कौन कौन से? नीज आमिर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जानवर पालने में किन किन चीजों की एहतियात की जाए? बकरियां आपकी खिदमत में हाजिर थी। अच्छा, और ऊंट सवार ऊंटनी, मशहूर ऊंटनी कस्बा, तो इस पर तो वो हमारे यहाँ तो बच्चियों के नाम भी रखे जाते हैं कस्बा, उसी की निस्बत से, तो ये भी आपकी खिदमत में थी। याफूर एक जिसको हम माने खोता बोलते हैं या गधा या डोंकी, तो वो मतलब वैसे इसका साफ लफ्ज है कि जैसे चार दराज गोश लंबे कानों वाला, खर भी बोलते हैं इसको। तो आपका दराज गोश याफूर वो आया था माने गनीमत में एक जंग के मौके पर, तो उसमें मतलब वो भी आपकी खिदमत में हाजिर रहता था। वो तो बड़ा सआदतमंद था। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये पेश हुआ तो उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक यहूदी के पास था, हम आबा व अजदाद उसी के पास मैं वो, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं वो मुझ पर सवारी फरमाएं। तो इसलिए मैंने वो जो मेरा मालिक था उसको कभी अपनी पीठ पर सवार नहीं होने दिया। कोशिश करता था वो तो मैं दो लत्तियाँ झाड़ के उसको हटा देता था, बैठ नहीं सका कभी। तो सरकार नहीं पाक साफ हो, मुझ पर आप सवारी फरमाए तो मेरी सआदत, मेरी किस्मत की मेगराज। तो ये वो सरकारी खिदमत में रहा। किसी सहाबी को बुलाना होता सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भेजते थे, तो वो उस सहाबी के दरवाजे, घर के दरवाजे पर अपना सर जो था ना वो रगड़ता था, तो पता चलता था कि, तो अब वो पता चला कोई आया है तो याफूर अगर खड़ा है तो समझ जाते थे कि सरकार का बुलावा आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये याफूर इतना आशिक रसूल था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफात हुई ना, तो उस वक्त ये गमज़दा हो गया, इतना गमज़दा हुआ कि इसका समझो होश जाता रहा। और ये दौड़ा और एक कुएं में उसने छलांग लगा दी और खुद को इस तरह ख़त्म कर दिया इश्क़ रसूल में। तो अब ये जानवर था, वही नहीं से जो खुदकुशी कर ली, तो ये तो या इश्क़ रसूल हम भी जान दे दे इस तरह नहीं। यदि जानवर मुकल्लफ नहीं होता, मुकल्लफ माने पाबंद, शरीयत के अहकाम जो हम मुसलमानों पर है ना, तो वो जानवरों पर नहीं होते। तो ये इसने किया। आपकी कस्वा जिसका भी तस्करा हुआ ऊँटनी का, तो वो भी आशिका थी सरकार की। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया तो उसने भी चरना छोड़ दिया, चारा नहीं खाती थी, चारा पानी छोड़ दिया, यहाँ तक कि गमे मुस्तफ़ा में भूखी प्यासी वो भी वफात उसकी भी हो गई, फौत हो गई। जानवरों में भी इश्क होता है, ये शऊर होता है, सोचें होती हैं। इसकी और भी मिसालें रिवायतों में। तो यूं मतलब ये कि उसने भी, यहाँ हमारे लिए बड़ा दर्स है कि जानवर इतनी मोहब्बत करें सरकार से, और हमें यार या कोई मोहब्बत का मुजाहरा करे तो वो भी हमको वसवसे आते हैं कि ये यूं क्यों करता है, झंडा क्यों उठाता है, बत्ती क्यों जलाता है, नाच क्यों पड़ता है, क्या हो गया यार। तो ये भी, और फिर अमली तौर पर भी तो हमको करना है ना इश्क़ रसूल का मुजाहरा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हमारी मोहब्बत है, तो अगर ये याफूर और कस्वा मुकल्लफ होते ये नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, क्योंकि मुकल्लफ नहीं थे, इन पर नमाज नहीं थी। आप बताइए जो जान दे सकते नमाज पढ़ते ही नहीं पढ़ते, हम पढ़ते, हम भी आशिक रसूल हैं, हम पढ़ते, जबकि जिनसे हम इश्क रखते हैं वो खुद फरमा रहे हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई। हम आंखों की ठंडक जो सरकार की नमाज है वो पढ़ते हैं। अच्छा, जो पढ़ते हैं वो वाकई पढ़ते हैं, वाकई क्या, वाकई जब होगा ना दुरुस्त पढ़ेंगे, वो दुरुस्त पढ़ते हैं। कभी सीखा, कभी कोशिश की कि हम दुरुस्त पढ़ा करें। अच्छा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ
तो उसमें लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, ठीक है ना। किसी फर्द पर हम नहीं पढ़ सकते हैं आयत के इस पर अल्लाह की लानत, मुतलकन है। अच्छा, इसी तरह मतलब ये कि जिन पर हम मोहब्बत करते हैं, इन्होंने झूठ के लिए कितना मना किया हमको, झूठ बोलने से। सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम बोलते हैं, कितना बोलते हैं हमारे माशरे में, झूठ कितना है। ये झूठ अगर माइनस हो जाए ना हमारे माशरे से, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे दुख हमारे यूं ही खत्म हो जाए, झगड़े ही खत्म हो जाए। इसके अलावा दीगर कितने गुनाह ऐसे हैं जिसको हम कर रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नूरानी चेहरा था, दाढ़ी मुबारक, नूरानी चेहरा था, है और रहेगा। तो दाढ़ी मुबारक है ना। अब तसव्वुर करें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो क्या माज़अल्लाह नंगे सर नजर आएंगे, इंग्लिश वालों वाले, दाढ़ी बगैर के नहीं है। बेहतर से बेहतरीन दाढ़ी का तसव्वुर हमारे जहन में आएगा। ऐसी दाढ़ी मुबारक की कायनात में किसी की ना हुई ना होगी, ऐसा आएगा ना तसव्वुर, नूर बरसाती दाढ़ी। सर अक़दस पी कैप नजर आएगी ना, ना क्या नजर आएगा, इमामा। वो कैसा इमामा जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, वो है ना इमामा नूर का, ताज वाले देख कर, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का। दुनिया जहान के बादशाह जो सरों पे अपनी ताज सजाते हैं ना, या रसूल अल्लाह, जब वो आपका इमामा देखते हैं, ताज वाले सर झुकाते हैं तेरा, सर झुकाते हैं इलाही, हाँ, ताज वाले देख कर, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का। तो ऐसा इमामा शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजाया, सब जानते सजाया ना। और जो भी मतलब यानी कि हम जो करते हैं सारा समझे उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं। तो हमारी मोहब्बत और एक जानवरों का इश्क, जो भी दो जानवर भी अब बोले यार ये, अब तो बोलेगा यार इसकी रिवायत, इसकी सेहत, फुलान ऐसे ये लोग कर लेते हैं, तो क्या अभी नमाज छोड़ना जायज हो जाएगा? ये अगर दोनों गलत हों बिल फर्ज मोहल, तो क्या ये नमाज अब नहीं पढ़नी, झूठ बोलते जाना है? दाढ़ी रखने से गुनाहगार होता है बंदा, इमामा पहनने से क्या वो मुसलमान नहीं रहता क्या? सारी वो बातें हैं जो कोई मुसलमान इनकार तो नहीं कर सकता इसका कि है तो सही इस्लाम में ये चीज है, हम क्या करते हैं यार। बहरहाल ये कि सरकार की मोहब्बत में, और ये वाकया जो मैंने अर्ज किया ना, ये हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो इनकी किताब मदारिज नबुव्वत, मशहूर किताब है इनकी, बहुत मशहूर है, 2 जिल्दों में होती है, इतनी मोटी मोटी किताब है। तो ये सीरत नबवी पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर बेहतरीन किताबें, उर्दू तर्जमे भी मिलते हैं इसके, इनमें आपको ये मिल जाएंगे इंशाअल्लाह करीम, और भी किताबों में मिलेंगे। तो इस तरह मतलब ये कि आप जो मैंने अर्ज किया उन पर थोड़ा गौर कर लें, अपने इश्क का सबूत दें इसका, है ना। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात अपने को बिल्कुल, यानी कि ये जश्न विलादत जो 1500वां, अल्लाह करे हमारे अंदर तब्दीली लाने का सबब बन जाए। हम पहले ऐसे रहे नहीं, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, शैतान की हुकूमत खत्म हो गई, अब मेरे महबूब की हुकूमत मेरे दिल पर कायम हुई, पहले से थी, मजीद मतलब मजबूत हुई, और अब मैंने वही काम करने जो मेरे महबूब ने और इनके रब ने मुझे हुक्म फरमाया है। खलास, मुझे शैतान की बात मननी नहीं है। काश ऐसा जश्न विलादत हम मनाएं कि हम अपनी सीरत पर भी जश्न विलादत के आसार जो हैं वो कायम कर दें, चलती फिरती तस्वीर बन जाए हम जश्न विलादत की। झंडा लगाना, बत्तियां करने, सब जश्न विलादत ही का खुशी का इजहार है। लेकिन मैं कहता हूँ हमें ऐसे चलते फिरते जश्न विलादत के नमूने हो जाए कि मैं पहले तो यूं था, लेकिन जश्न विलादत की बरकत मुझे ये मिली कि अब मैं यूं, काश अब मेरी तो तहज्जुद की भी तरकीब बनती जा रही है, और पहले तो बस ऐसे ही था मैं, फजर की नमाज, अब ये बोलते नहीं, किसी को बोलना नहीं कि मेरी फजर की नमाज कज़ा होती थी,
बिला जरूरत इजहार नहीं करना चाहिए अपने गुनाह का, बस समझाने के लिए अपने तौर पर कि मतलब हम ऐसे हो जाए कि ना हमारी फजर कज़ा हो, ना जोहर निकले, ना कोई और नमाज छूटे, है ना, खाना छूटे, पीना छूटे, लेकिन नमाज ना छूटे। अल्लाह करे हम ऐसे हो जाए, अल्लाह करे ऐसे हो जाए, अल्लाह करे ऐसे हो जाए। तो सब हिम्मत करें, अपने अंदर जज्बा बेदार करें कि हमने अमली तौर पर भी जश्न विलादत मनाना है इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए मोहम्मद इलियास अत्तारी सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि रिकॉर्डिंग तिलावत का सुनना और अगर इसमें सजदा तिलावत आ जाए तो क्या सजदा करना वाजिब हो जाएगा? नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में KPK के इस्लामी भाई भी हैं और बलूचिस्तान की भी एक बड़ी तादाद में इस्लामी भाई मौजूद हैं। इसी तरह इंटरनेशनल दारुल मदीना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के भी जो हैं वो इस्लामी भाई आए हैं और कराची के शोबा प्रोफेशनल्स के भी इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं। शोबा मोहब्बतें बढ़ाओ के बुजुर्ग इस्लामी भाई भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबको वेलकम, मोस्ट वेलकम, मरहबा, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, भली करी आया, जी आया नो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। शान इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी गोद मुबारक में बिठाया करते, सूंघते, अपने सीने से लगाते। नीज आपको जन्नती जवानों का सरदार फरमाया। खलीफा राशिद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह फरमा कर अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को जो बुखारी शरीफ में अमलन पूरा फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह पाक इसकी बदौलत मुसलमानों की दो बड़ी जमाअतों में सुलह फरमाएगा। बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 214 हदीस नंबर 2704। तो शान इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी क्या बात है कि दो मुसलमानों की जमातों में एक अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जमात थी ना इसमें, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दस्तबरदार हुए। 6 माह अपने खिलाफत फरमाई, इसके बाद दस्तबरदार हुए ताकि मुसलमानों में सुलह हो जाए और आपस में लड़ाई ना हो। तो अगर इमाम सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सही और दुरुस्त आदमी ना होते तो इमाम हुसैन तो अपना सर कटाए, इमाम हसन कैसे इनसे सुलह कर सकते थे। तो इससे भी ये इशारा मिला कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी नबी थे रज़ी अल्लाह तआला। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोश इज्जत पे लाखों सलाम, साहिबुल इत्तिका है हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, नवासे मुस्तफा फरजंदे मुर्तजा, नूरे आईने फातिमा, जन्नती बेशुबा, कामल बेरिया, रहबरो रहनुमा, है हसन मुजतबा, है हसन मुजतबा। 1447 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की आज 5 तारीख गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 तारीख हज़रत नवास रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत। तो हमने इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नियाज की तरकीब की। अभी आपने भी अगर नियाज ना की हो तो कर दीजिएगा। सल्लल्लाहु
नवास रसूल, जिगर गोश बतूल, सैयदुल असखिया, राकिब दोश मुस्तफ़ा, हज़रत सैयदुना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे नवासे थे। और आपने मतलब इनको और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे भाई थे, ये बड़े भाई थे इमाम हसन, दोनों के लिए मतलब ये फरमाया कि दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और भी इनकी बड़ी शानें हैं और बड़े मतलब सैयदुल असखिया, सैयदुल असखिया माने सखी की जमा असखिया, इनके भी सरदार, सखियों के सरदार। इतने बड़े सखी थे आप कि एक बार आपके करीब पहलू में साइड में बैठकर एक आदमी अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज कर रहा था कि मुझे 10,000 दिरहम की जरूरत है। जैसे ही आप रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इस हाजतमंद की ये दुआ सुनी तो फौरन अपने घर तशरीफ लाए और उस शख्स के लिए 10,000 दिरहम भिजवा दिए। इन्हें उसकी दुआ की कबूलियत का ये अंदाज हुआ ना, कबूल तो अल्लाह ने की उसकी दुआ। सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुबारक दिल में अल्लाह पाक ने डाला कि इसको दे दे, आपने भिजवा दिए 10,000 दिरहम। तो कितने यानी सखावत इनकी देखी आपने। 10,000 दिरहम किसको बोलते हो उस दौर के, वो भी 10,000 दिरहम। दिरहम पहले ये चांदी का सिक्का होता था, अब तो कागज पे छपता है। हवाला इब्ने असाकिर जिल्द 13 सफ़ा नंबर 245। तो किसी ने बारगाह इमाम हसन मुजतबा में अर्ज किया, मेरा दिल करता है मैं भी हज करूं, हो अता ज़ादे सफ़र चश्मे करम। मेरा दिल करता है ए इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु अन्हु, मेरा दिल करता है मैं हज करूं, मुझे सफ़र का जो सामान है, ज़ादे सफ़र, सामान सफ़र मुझे अता कर दीजिए और मुझ पर अपनी निगाह करम फरमा दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। देखिए ये जो हमारी दावत इस्लामी है, ये तो इस साल जो हमारा ईद मिलादुल नबी मनाया जा रहा है ना,